Okay, so first of all, understand the this name which is called consolidation. Consolidation. Okay. So before doing any construction, whether it will be a residential building or if you are preparing a subgrade for any pavement, okay. So you need to first the compact the soil. Okay. So there are two methods for compaction, or you can say there are two ways by which this compaction or this densification is done of the soil. So first of all, you have studied compaction, and why it is necessary compaction to densify the soil. Okay, suppose this is the soil. Okay, so by doing this compaction means you are giving some extra energy or load by which this soil get densified. So then it will, after densification what will be happen, after densification what will be happen, the shear strength of the soil is increased. Okay, so shear strength of the soil become increased, correct. And many advantages of this densification. Permeability will be decreased. Okay, so there are two terms you have heard. First is compaction and second is consolidation. Okay, so the basic difference is, so we have studied in chapter 1 of the soil that soil always occur in three phase system. Okay, suppose this is soil solid. Okay, this may be what, water, or this may be air. So this is three phase system of soil. So whether the soil can occur in three phase or two phase, even two phase. Suppose this is soil solid and this is water, or it can be this is soil solid and this is air, correct. Now this air and water, this is called what, this is called what, void or pores. Okay, so for before construction we need to minimize this void. Okay, we need to minimize this void. This void should be minimum, so that this soil strata will be densified, and hence we can improve the shear strength of the soil, which is very important factor for any soil. Okay, in when you study the design of shallow foundation or bearing capacity of shallow foundation, then always remember that foundation is there are two consideration. Okay, for foundation, first is the foundation should safe against shear strength. Okay, and the second is the settlement of the foundation should be within permissible limit, correct. So for that, for achieving these two criteria, we need to minimize this void. Okay, so if the this soil will have the air voids, now the removing or expulsion of this air void is called compaction, and removing or expulsion of this pore water is called consolidation. Okay, so this is the basic difference between compaction and consolidation. What is compaction? This is expulsion of what, air voids, and consolidation is what, expulsion of or removal of what, water void, correct. So compaction is generally done for unsaturated soil. This is unsaturated. You already know what is saturation and unsaturation. Okay, and consolidation always occur in saturated soil. Saturated soil, correct. So the compaction means expulsion of air void, and consolidation means expulsion of water void. Are you getting all, Nidhi? Yes, sir. Okay, very good. Yes, Uh, sir. Yes, sir. okay. Yes, sir. So this is a very basic definition, and obviously there are many other factors and many more difference between compaction and consolidation you will study in that chapter. Okay. So the basic things what I am trying to say, that is this expulsion of air voids is called compaction, and expulsion of water void is called consolidation. Okay, so compaction is done by mechanical energy. Okay, by with the help of hammer, or you have seen that hammer, we have a hammer na. So by applying this hammer on the soil, this get densified. But
if this soil is having water voids, okay, water, this, suppose this is pores, okay, suppose this is pores and this is having water, then you cannot remove it by mechanical energy. You will have to give the static energy. Okay, suppose you have placed some load here, and with the time this water void will expel and this will go settlement, and this is called consolidation. Okay, so in general, we can say consolidation occur in three steps, or there are three parts in consolidation. The first is called immediate settlement. Immediate settlement means, suppose this is the soil strata, okay, this is ground level, okay, and this is soil, okay, this is soil, and this is soil, okay, wait. What happened this? Okay, so this is the, suppose this is the soil solids, and suppose this is waters. Okay, this is water. Okay, so initially what happened, when you applied the static load over this for consolidation, then this soil strata, all the soil strata get immediate settlement, or generally it takes 7 days, or even in if it is a sandy type soil or silty type soil, it takes in hours also. So generally it takes in 7 days maximum. Okay, so this is called immediate settlement just after placing the load. Okay, and in this immediate settlement, all the air voids, okay, actually in practical all the voids can never be removed, but since we are studying in theory purpose, so I will say, or we will assume that 100, more or less 100%, but in practical it is never achieved. 100% compaction or 100% consolidation can never be done. Okay, so um, uh, just after placing the loads, what happened there, the soil goes immediate settlement. Okay, so this is called immediate settlement, and in this immediate settlement, almost all the airs voids get expelled. Okay, all the voids get expelled. Next term is called primary settlement. After this immediate settlement, what happens, this water voids start, what starts removing. Okay, after immediate settlement, with this, due to this load, what happened, all the water voids started removing. Okay, and when when all these water voids get removed, then up to this interval, it is called primary settlement. Okay, so in primary settlement, we can say that all the water voids get removed. Correct. Next, when 100% water voids is removed, then due to effective stress, or due to rearrangement of soil, due to rearrangement of soil, there are some settlement or consolidation which goes up to infinite time. Correct. So this comes under secondary settlement. Okay, so this consolidation is an infinite time process. Okay, it is a very long process, but generally for design purpose, we will take this primary settlement. Okay, so have you ever seen anywhere that suppose in railway or in highway, you have seen that the piers or abutment of the bridge has already constructed, but there is no there is no railway track is placed over the abutment or pier. It is due to, because due to this pier or abutment, there are some loads on the soil, and due to that load, it goes settlement, it goes some compression. Okay, after the consolidation or after the settlement has been done, then this railway track has been placed over this pier or abutment. In general also, if you have and always remember this concept while you are constructing your buildings. Okay, so always if the soil is clay soil, okay, generally this consolidation occurs in clay soil. Okay, why clay soil? Because the permeability is very less. Okay, the permeability is very less.
This permeability is very less in types of clay soil. That's why in clay soil this consolidation is an important factor and it takes time. But if we are constructing, or if our area of concern is sandy soil, okay, then more or less all the compacts, all this settlement is can be achieved by compaction only. Okay, no need for consolidation. Okay, so for sand we can say that all this compression is in this immediate settlement. Okay, this is in instantaneous phenomena in sand. But whenever we have a clays, okay, then this consolidation plays an important factor. Got it? So understood this immediate settlement, primary and secondary. Is there any question? Anyone? Saurabh, Ankit, Hari, Swati, Nidhi? Hello? No, sir. No, sir. Okay. So this Clear, was sir. more or less the basic things of immediate and this consolidation. Now, this is a role of a stress history. Okay, this graph shows. Suppose this is a ground level. Okay, this is a in situ, and this is a soil. Okay, so if you take this soil, okay, suppose you have done excavation, and you took this soil from here to the your laboratory for in laboratory you have IS, as per IS 2720 part 15. Part 15, a test is being defined in this IS code, that is consolidation test. Consolidation test, okay, to find the related parameters. Okay, consolidometer test. Okay, there is an instrument called consolidometer. Okay, so when you excavate from here, from this soil, and you took in a consolidometer, okay, for this test purpose, okay, and when you applied this load on this specimen, from this load, this E versus void ratio versus effective stress, a graph is plotted, and this will be shown like this. Okay, and this graph and this graph both are the same. Okay, this is plotted in simple E versus sigma dash graph, and this is plotted in log, semi log graph. Okay, this test data are same. Okay, this both the graph are same. The difference is only what? This graph is plotted in E versus sigma simple graph, and this is plotted in the same data is plotted in semi log graph. Correct? So initially what happened, when you took soil from here to here, okay, and when you just place the load, okay, then the soil will in the very beginning soil will what? Recompress. Okay, and the graph will be like this one, and this is more or less flatter graph. Okay, so this is recompression graph. Okay, when this specimen is achieved the same situation as before, as like when it was in situ, and when it exceeds that load, okay, so this is the maximum stress. Okay, this is the maximum stress that the soil can ever experienced. Okay, and this is called what? Pre-consolidation stress. You just write down write down this this name, pre-consolidation stress, sigma c dash. Okay, what is this pre-consolidation stress? This is the maximum stress that the soil has ever experienced. Okay, this is pre-consolidation stress. This is the maximum stress that the soil has ever been experienced. Okay, and from here, when it exceeds this point, when you giving extra load, then what happened? This will show this graph. Okay, this is here. It is in this is curve, and in this, when this curve is plotted in this semi log graph, this is more or less a straight line. Okay, and this is called virgin compression curve. Okay, and the slope of this line is called compression index, that is Cc is equal to E1 minus E2 divided by logs. Obviously you know how to find the slope of any straight line. Okay, so this is compression index. Okay, just write down this this thing. Okay, slope of the virgin compression curve is called compression index. Okay, and this slope is of what? Virgin compression curve is when it is a straight line, and when it will be a straight line, when this is in
E versus log sigma graph. Correct? So just write down compression index is the slope of virgin compression curve in the E versus log sigma graph, and the value of this compression index, that is Cc, is equal to E1 minus E2 divided by log sigma 2 dash minus log sigma 1. This is a very basic equation of slope, है ना? ठीक है? Next, this next is, suppose after this point what happened, we just remove the loads. Okay, when we remove the load, what will happen, this soil will expand. Okay, and this void ratio is increased up to some extent. Okay, up to some extent, and the slope of this expansion curve is called swelling index, CS. Okay, CS, the formula is same, slope ka formula you know, this E2 minus E1 divided by log sigma 2 minus log sigma 1. Okay, so this is called expansion curve. Okay, and when the expansion curve, what is expansion curve? When the load is removed, then the soil will expand. Okay, and when again the load is placed, and this will again this recompress, and it will go beyond this point P, it will become a straight line again. Okay, so this slope of this expansion curve is called swelling index, that is CS. Okay, and slope of this virgin compression curve in E versus sigma dash. Okay, in when we just find the slope of this virgin compression curve in the E versus sigma dash graph, then it is called coefficient of compressibility, AV, is equal to del E by del sigma dash. Correct? So there are two slope of the same virgin compression curve. One is in E versus sigma dash, that is called coefficient of compressibility, and the second is in E versus log sigma dash, and that is called compression index, CC. Okay, so have you noted these three words? That is pre-consolidation stress. It is the maximum stress that the soil has ever been experienced. Correct? That is, always remember the notation, because in this consolidation chapter there are numerous numbers, 10 20 parameters are there. Okay, just remember all that हाँ, yeah Ankit. सर ये प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस कैसे आता है? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या? हाँ, वेट, सपोज दिस कैसे आता है ये सॉइल में? कैसे आता है ना, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या है, जैसे ये एक सॉइल था, सपोज दिस इज अ सॉइल. ओके, दिस इज सॉइल स्ट्रेटा, है ना, इसके ऊपर भी तो सॉइल होगा ना, ये तो सॉइल होगा इसके ऊपर, है ना अंकित? हेलो, ओके. सो एट दिस पॉइंट, एट एनी डेप्थ जेड, एट एनी डेप्थ जेड, अगर इसका तुम वर्टिकल स्ट्रेस निकालोगे तो क्या निकालते हो? फॉर्मूला क्या है? दैट द फॉर्मूला इज व्हाट? गामा डी इनटू जेड, गामा डी और गामा बी, वॉट एवर द दिस स्ट्रेस कंडीशन. ओके, गामा डी और गामा बी और वॉट एवर दैट, तो यूनिट वेट इनटू व्हाट? जेड. दिस इज वेरी बेसिक इक्वेशन. सो सपोज दिस हैव अ स्ट्रेस. ओके, सपोज मान लो इसका स्ट्रेस कुछ x है. ओके, सपोज दिस इज x. Okay, kilonewton per meter square. Correct? Now when you excavate and when you take the soil from here to here, तो अभी क्या होगा? ये सॉइल का स्ट्रेस तो कोई नहीं होगा ना, इस सॉइल में कोई स्ट्रेस होगा अभी? जब यहाँ से जब लैब में वापस लाएंगे इसको, कॉन्सोलिडोमीटर अपरेटस में रखेंगे, तब तो इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है. लेकिन जब व्हेन वी स्टार्ट अप्लाइंग लोड्स, तो लोड हम इस पे कब देंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ठीक है, तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मान लो x था, है ना, तो जीरो से x तक पहुंचने पर क्या होगा? इस सॉइल में रीअरेंजमेंट होगा, इसका जो पार्टिकल होगा दैट विल रीअरेंज, है ना, एंड इट विल ट्राई टू अचीव आफ्टर just when it is subjected to this in situ load, then it will be in that condition. Okay, so उसके बाद जो लोड देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. मतलब इस जब हम इन सीटों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लोड इसका था, जो स्ट्रेस यहाँ पे इन सीटू जो स्ट्रेस ये दैट वाज एक्सपीरियंस, दैट इज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस. मतलब इन सीटू जो एक्स है ना, यही इसका प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, कि ये सॉइल अपनी हिस्ट्री में जब से इसका ओरिजिन हुआ है ना, इन द पास्ट, इन द स्ट्रेस हिस्ट्री और इन द हिस्ट्री ऑफ दिस सॉइल, है ना, इट हैज द मैक्सिमम, इसका जो स्ट्रेस था ये था x, है ना. अभी इसका बहुत सारा कंडीशन हो सकता है ना, कभी वाटर टेबल यहाँ पे हुआ होगा, कभी वाटर टेबल यहाँ पे हुआ होगा, कभी यहाँ पे वाटर टेबल हुआ होगा. तो यू नो विद द चेंज ऑफ वाटर टेबल डेप्थ द स्ट्रेस ऑल्सो चेंज, है ना अंकित?
कभी इसका Yes, sir. वाटर टेबल अगर यहाँ होगा तो इसका कुछ स्ट्रेस होगा, वाटर टेबल यहाँ पे होगा कुछ स्ट्रेस होगा, वाटर टेबल अगर यहाँ पे होगा तो कुछ स्ट्रेस होगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसने अपने हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस किया वही हो गया इसका प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। Yes, sir. ओके अभी जब हम इसको लैब में हम ले आए तब तो हम इसके बाद का भी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से भी हम इसको और एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, है ना, जो हम मैनुअली दे रहे हैं लैब में एज पर IS 2720 पार्ट 15। दिस इंडियन स्टैंडर्ड कोड डील्स इन डिटेल्स हाउ टू कंडक्ट दिस टेस्ट। ओके सो दिस इज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस सिग्मा सी डैश। और उसके बाद हम जब लोड देंगे इन इन दिस टेस्ट स्पेसिमेन, अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबोरेटरी सेटअप, है ना। जब हम लेबोरेटरी में आ गए व्हेन दिस सॉइल इज एक्सपीरियंसिंग लोड, तब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम लॉग सेमी लॉग ग्राफ में हम वी आर सीइंग दैट अ स्ट्रेट लाइन, और अगर सिंपल ग्राफ देखेंगे तो इट विल लाइक दिस वन। Okay, and the slope of this one is called this slope of the various lines are called different parameters, like slope of this virgin compression curve in this log graph is called compression index, है ना। Swati and Nidhi, are you getting? Yes, sir. Okay, so just note it down. Saurabh and Hari also note it down. These terms. First one is what? Pre-consolidation stress. It means the soil has been ever experienced the maximum stress in the soil stress history. It's called pre-consolidation stress. अभी क्या हो गया? Slope of this curve is called compression index. CC equal to this one. Next, slope of the expansion curve is called swelling index. CS. इसका भी formula इसी तरह होगा कुछ, sigma E1 minus E2 divided by this one. And when we talk about the slope of this virgin compression curve in the simple graph, that is called coefficient of compressibility. One more term is coefficient of volume that we will study in that subsequent slide. Okay, so for the time being, just remember these two formulas. Two formula is important: CC and this is AV. Correct? Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now this. Now, there are a few more terms related to that graph only. The first one is what? Normally consolidated soil. So normally consolidated soil means when the existing effective stress sigma dash is the maximum that it has ever experienced in its history. Okay. Suppose अभी हम मान लो we are taking the soil sample, है ना, फ्रॉम इन सिटू, कोई फील्ड से हमने सॉइल ले लिया, है ना। अभी उस जब हमने सॉइल लिया तो एट दैट टाइम व्हेन द स्ट्रेस इज द मैक्सिमम, व्हेन इन दैट सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री, तब हम क्या बोलेंगे, दैट सॉइल इज इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड। करेक्ट? जस्ट नोट इट डाउन. नॉर्मली कंसोलिडेटेड मींस सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा सी डैश. सिग्मा सी डैश इज व्हाट? ये टर्म पता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा सी डैश इज pre-consolidation stress, correct? And sigma dash is the existing, अभी का क्या स्ट्रेस है ना। तो सिग्मा सी डैश हमेशा याद रखना, इसका नोटेशन क्या है? सिग्मा सी डैश इज द pre-consolidation stress, है ना। तो when the soil, अभी अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है, when the soil is we are taking, suppose at that time or present vertical stress is the maximum, तो maximum मतलब क्या होगा उसका? वो वही pre-consolidation stress हो गया, है ना। तो अगर वो सॉइल लेते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सॉइल व्हेन द प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज द मैक्सिमम और इज इक्वल टू प्री कंसोलिडेशन, एक ही बात होगा, मैक्सिमम बोलो चाहे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस बोलो, एक ही बात है। सो दैट सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, है ना। डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है ना, ऐसा नहीं है कि हम अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, अभी हम बिल्कुल इस व्यू से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मोर और लेस जो बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, वी आर जस्ट स्टडिंग दिस फ्यू लाइंस फॉर द क्वेश्चन पर्पस और फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस। हाउएवर हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वी आर ऑल्सो डीलिंग विद दैट। ओके, सो नॉर्मली कंसोलिडेटेड मीन्स रिमेंबर द स्ट्रेस इज द मैक्सिमम। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस वन, नॉर्मली कंसोलिडेटेड इज इक्वल टू सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश। Okay, now a soil is said to be pre-consolidated or over-consolidated. इसको कब बोलेंगे? pre और over-consolidated कब बोलेंगे? If the existing effective stress is less than the pre-consolidation stress, है ना। मान लो अभी हमने कोई सॉइल लिया, ठीक है, तो उस जब सॉइल हमने लिया
तो सपोज करो कि उस सॉइल का जो प्रेजेंट स्ट्रेस है, उस समय जब हम सॉइल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस समय का जो स्ट्रेस है सपोज दैट इज लेसर देन दैट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। इसका मतलब पहले उसने इससे ज्यादा स्ट्रेस उसने बियर कर चुके हैं, है ना। मान लो कोई एक सॉइल स्ट्रेटा है, ठीक है, ओके, और हमने 20 मीटर पे हमने क्या किया, उसका सॉइल का हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, लेकिन ये 20 मीटर ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से 10 मीटर, मान लो ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो सपोज करो इनिशियली ये तो ग्राउंड लेवल होगा, इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सपोज करो हमने यहाँ पे एक वेल डिग कर दिया, है ना, 10 मीटर का ये वेल, हमने एक वेल कुआं, है ना, वेल हमने एक्सकेवेट कर दिया, या ट्रेंचेज या किसी तरह का एक्सकेवेशन हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम जो सॉइल लेंगे, अभी आफ्टर एक्सकेवेशन ऑफ दिस सॉइल, अभी हम जो सॉइल लेंगे उसका स्ट्रेस, है ना, कुछ तो कम होगा ना, मतलब अभी का जो सॉइल लेंगे उसका स्ट्रेस कम होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे वेल नहीं था तो यहाँ पे तो सॉइल था, तो इस सॉइल के कारण इसको क्या बोलते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर। इस सॉइल के कारण यहाँ पे स्ट्रेस तो ज्यादा होगा, लेकिन जब हमने एक्सकेवेट कर दिया यहाँ से जब सॉइल रिमूव कर दिया तब क्या हो गया, इसका ओवरबर्डन प्रेशर कम हो गया ना। अभी तो ओवरबर्डन प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से है, तो अभी इस सॉइल को क्या बोलेंगे हम, प्री कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड, correct, if the existing effective stress is less than the pre-consolidation stress. Okay, just note it down, sigma dash is smaller than sigma c dash. Okay, understood, clear to everyone? Yes, sir. Okay, now next one is called under consolidated soil. Under consolidated soil means that's opposite to this pre consolidated. मतलब क्या होगा कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है ना, हमने यहाँ पे सॉइल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो अभी का जो हम स्ट्रेस लेंगे, द ओवरबर्डन प्रेशर इज दिस वन, है ना, गामा बल्क इनटू जेड, है ना, दिस विल बी दिस ओवरबर्डन प्रेशर और वर्टिकल स्ट्रेस। ओके, आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके, अगर वाटर टेबल आएगा तो उसका इक्वेशन अलग हो जाता है, लेकिन इन जनरल जस्ट वी कैन टेक दिस इक्वेशन, गामा बल्क इनटू जेड। लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनने वाला है, कुछ बिल्डिंग बनेगा या फिर कुछ फिल, है ना, कुछ फिलिंग करेंगे हम यहाँ पे मान लो कुछ पेवमेंट बनेगा, तो यहाँ पे सबग्रेड आएगा एक, है ना, इसका सबग्रेड आएगा, ओके, या फिर कुछ बिल्डिंग या फिर एनीथिंग, है ना। तो इन फ्यूचर अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ फिलिंग होगा, यहाँ पे कुछ सॉइल फिलिंग हो सकता है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, इन फ्यूचर इसका तो स्ट्रेस और इंक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो फ्यूचर में जो स्ट्रेस है वो अभी वाले स्ट्रेस से, मतलब प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से भी ज्यादा होने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओके, लेकिन मोर और लेस इन नॉट 100%, लेकिन मतलब 75 और 70 और इन द मैक्सिमम केसेस वेन एवर यू एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन इन गेट और आईएएस और जेई क्वेश्चन ना, मोर और लेस मैक्सिमम जो इक्वेशन होगा ना हमारा, मैक्सिमम ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ही होता है ना, बड़ा सिंपल उसका द सेटलमेंट इक्वेशन इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड। लेकिन जब प्री कंसोलिडेटेड की बात आती है ना तो थोड़ा इक्वेशन इसका लेंदी हो जाता है, हालांकि इससे क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन वी विल स्टडी दैट इक्वेशन आल्सो। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस नॉर्मली प्री कंसोलिडेटेड एंड अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल? अंकित, सौरभ? यस सर, यस सर। ओके, हाँ, कंप्रेसिबल कौन ज्यादा होता है सर? कॉम्प्रेसिबल क्ले होता है, अभी हम पढ़ेंगे उस पर भी। कॉम्प्रेसिबल क्ले सॉइल ज्यादा होता है, जिसका कॉम्प्रेसिबल और परमेबल। जिसमें सर नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड। देख हाँ, कॉम्प्रेसिबल और परमेबिलिटी इज अ डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट रिलेशन है टाइप ऑफ सॉइल पे भी, है ना। जैसे टाइप ऑफ सॉइल मतलब अगर तुम्हारे पास सैंड है और क्ले है, तो इसमें सैंड इज मोर परमेबल एज कंपेयर टू क्ले, बट क्ले इज मोर कॉम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू सैंड, है ना, कॉम्प्रेसिबल और परमेबल। उसका हमारे पास एक क्वेश्चन भी आएगा, है ना, 3 टाइम्स कॉम्प्रेसिबल है, परमेबल है, वो भी हम अभी करेंगे, है ना। अगर टाइम विल परमिट देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। तो परमेबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो अब हमेशा ये याद रखो कि जिसका परमेबिलिटी कम होता है उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होता है, एंड क्ले इज मोर कॉम्प्रेसिबल। ठीक है अंकित? यस और जब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड और अंडर कंसोलिडेटेड की बात है ना, तब थोड़ा सा थ्योरी में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR, है ना। OCR का मतलब क्या होता है? OCR इज द रेशियो ऑफ व्हाट, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस टू द प्रेजेंट वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस, और वी कैन से OCR इज इक्वल टू
this pre-consolidation stress sigma c dash divided by sigma dash. This is the OCR, over consolidation ratio, is the ratio of pre-consolidation stress to the present vertical stress. Okay, तो अभी नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सॉइल की जब बात करेंगे तब क्या है यहाँ पर देखो, इसका प्रेजेंट स्ट्रेस और प्री कॉन्सोलिडेशन बराबर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना. गॉट इट. नाउ फॉर प्री कॉन्सोलिडेशन और ओवर कॉन्सोलिडेटेड स्ट्रेस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट स्ट्रेस क्या है, कम है सिग्मा सी डैश से, तो इसका ओसीआर क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर. एंड फॉर अंडर कॉन्सोलिडेटेड ओसीआर इज स्मॉलर देन 1. ठीक है, ये समझ में आ गया या समझाना पड़ेगा मुझे. ओके आ गया सर. आ गया सर. हाँ, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम, अगर इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इज स्मॉलर देन सिग्मा सी डैश बाय सिग्मा डैश, है ना. और इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा सी डैश बाय सिग्मा को ओसीआर लिखते हैं ना, ओसीआर, है ना. तो वही तो लिखा है ना यहाँ पे, प्री कॉन्सोलिडेशन को ओसीआर इज ग्रेटर देन 1, वही लिखा है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे भी सेम हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन. ओसीआर इज द रेशियो ऑफ प्री कॉन्सोलिडेशन टू द प्रेजेंट वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस. तुम्हें बस ये याद रखना है, ये रेशियो याद रखना है, ठीक है. और ये तो ऑब्वियसली ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें ये याद है तो, ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर ओसीआर इज इक्वल टू OCR is the ratio of pre-consolidation stress to the present vertical effective stress. Okay, so this was more or less the concept, मतलब which is मैक्सिमम यूज्ड इन द क्वेश्चन, है ना. ऐसे तो ये जो कंसोलिडेशन चैप्टर है दैट इज अ वेरी इन डिटेल पढ़ना है हमें, लेकिन अभी हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं. जो जरूरत का था हमने पढ़ चुका है ना. जो जरूरत था, मेन जो हमारा बेसिक थिंग है कंसोलिडेशन का, वही यही है, ठीक है. दिस इज द वेरी बेसिक. इसके पीछे जो लॉजिक है, इमीडिएट में क्या होता है, प्राइमरी सेटलमेंट में पोर वाटर टोटल स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, वो सब हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, लेकिन जो मोर और लेस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एंड दोज कॉन्सेप्ट विच विल बी यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस इज आर, मतलब यही है आपका, ठीक है. तो अभी हम देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए आप एक बार. क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन, स्क्रीन सबको सही तरीके से दिख रहा है ना. यस सर. ओके, हाँ ठीक है. देखिए अभी हम सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, किसी को टाइम से इशू है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेंगे, तो किसी को इशू. नो सर. ओके, और जिसको भी इशू है ना, वो किसी समय आप क्लास छोड़ सकते हैं, ठीक है. और जिसको जो लास्ट, जैसे अगर जो लास्ट पर्सन होगा ना, वो क्लास छोड़ने से पहले मुझे बता देगा, ठीक है, ताकि हम मतलब मुझे पता चल जाए कि सबने छोड़ दिया, ठीक है. हम लोग अभी 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी समय लगे, 1 घंटा 2 घंटा में हो जाएगा. जो लास्ट पर्सन होगा, जो लीव करेगा मीटिंग को, वो मुझे बोलकर लीव करना. नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड स्टडी इट. पढ़ लिए क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास सॉइल स्ट्रेटा है. ओके, वी हैव इन द क्वेश्चन द सॉइल स्ट्रेटा इज गिवन. यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे सैंड है और यहाँ पे सैंड है, करेक्ट. तो जनरली हमने क्या बोला पहले, जो सेटलमेंट होगा वो किस सॉइल में होता है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट. बताओ मुझे. क्ले में होता है ना, क्योंकि सैंड जो है ना, यहाँ पे जो सैंड है, इसमें तो कॉम्पैक्शन से ही मोर और लेस सेटलमेंट हो जाता है ना. लेकिन विद द टाइम व्हेन द फुटिंग इज प्लेस, उसकी वजह से इस क्ले में सेटलमेंट होगा. तो ऑब्वियसली जब क्ले में सेटलमेंट होगा, जब ये लेयर नीचे आएगा तो सैंड भी नीचे आएगा, है ना. तो जनरली वी जस्ट फाइंड द सेटलमेंट ऑफ क्ले, है ना. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, सैंड क्ले, तो इसमें हमें सैंड के जो मीडियम, जो सैंड के जो बीचों बीच होगा ना लाइन, मतलब मीडियम सेंटर पे हम उसका सेटलमेंट निकालते हैं, ठीक है. तो अभी इसका जो यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड और ऐसे कुछ कहीं पे लिखा है इस क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो मतलब थोड़ा एज्यूम ही कर लेते हैं नॉर्मली कॉन्सोलिडेशन है, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो भी एक पैरामीटर है, जब हम फाइंड करते हैं कि नॉर्मली है या प्री कॉन्सोलिडेटेड है, वो हम अभी देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में. लेकिन
अभी बस इतना ही समझो कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम समझ जाना कि वो नॉर्मली कंसोलिडेशन है. हाउएवर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, है ना, इस क्वेश्चन में लिखा है ना. तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए एक हमारे पास इक्वेशन है. इक्वेशन दिख रहा है सभी को नीचे? देखो तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू सी सी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा डैश नॉट प्लस ये इक्वेशन है. ठीक है, वेयर सी सी इज व्हाट कॉम्प्रेशन इंडेक्स, है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो सी सी है ना, कॉम्प्रेशन इंडेक्स. ओके, तो सी सी का वैल्यू यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, लेकिन अगर ये ग्राफ नहीं दिया है ना, ये अगर ग्राफ नहीं पता है तुम्हें, या E1 E2 और सिग्मा 2 सिग्मा 1 का वैल्यू नहीं पता है, तो सीसी कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लिमिट. इसका भी बहुत सारा फॉर्मूला है, इसका 5-6 फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले में जो मेजर फॉर्मूला है, द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर इज दिस वन. यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूं. CC इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10, है ना. दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. वैसे इसका बहुत 4-5 फॉर्मूला और भी है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना. सिर्फ आपका 2 ही फॉर्मूला इसका याद रखना है. एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला जो अभी हमने स्लोप के बताया, तो स्लोप वाला, अनडिस्टर्ब के लिए. हाँ करेक्ट. ठीक है, और WL क्या है आपका? WL इज द लिक्विड लिमिट, है ना. तो इस क्वेश्चन में देखो लिक्विड लिमिट दे दिया 60%. करेक्ट, तो अभी मुझे सीसी का वैल्यू तो फाइंड चल जाएगा ना, फाइंड कर लेंगे. 0.09 इंटू 60 माइनस 10, तो 60 माइनस 10 कितना हो गया? 50 हो गया. तो 0.0 क्या हो जाएगा इसका बताओ? 0.45. हाँ करेक्ट, ये होगा. स्वाति, हरी, निधि, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ ना. तो ठीक है, इसमें कुछ समझना ही नहीं एक्चुअली, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. सीसी इज इक्वल टू 0.009 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 10. हाँ बोलिए. अनडिस्टर्बेड सॉइल के लिए लेते हैं सर. हाँ करेक्ट. देखो अभी तुम्हें देखना है ना किसके लिए लेते हैं. देखो हमारे पास इसका डिटेल में भी है, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको. यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? वेट. यस देखिए ये फॉर्मूला है आपका, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको. देखिए सीसी का वैल्यू कॉम्प्रेशन इंडेक्स बाय एम्पिरिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे देखिए कितना सारा फॉर्मूला है, दिख रहा है ना. फॉर अनडिस्टर्ब्ड के लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है, फॉर रीमोल्डेड के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास. व्हेन वॉइड रेशियो अगर पता है तो डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट है. जनरल एक्सप्रेशन ये है आपका. लेकिन ये सब इतना याद नहीं करना है, ये सब बिल्कुल याद नहीं करना है. दिस इज फॉर थ्योरी पर्पस और फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस, कि सॉइल चेंज होता है ना तो उसका सीसी का वैल्यू भी चेंज होता है. लेकिन मोर और लेस वी विल यूज दिस इक्वेशन ओनली. तो यही आपको याद रखना है, बाकी फॉर्मूला याद नहीं रखना है. बाकी फॉर्मूला बस आपको समझना है कि ऐसा भी होता है. ठीक है, जो फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है. करेक्ट अंकित, सम्राट? यस सर. ओके, तो बैक टू दिस प्रीवियस स्लाइड. क्या था हमारे पास यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे बताइए वैल्यू क्या है. सीसी इज इक्वल टू 0.009 60 माइनस 10. तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0.45. करेक्ट, दिस इज द कॉम्प्रेशन इंडेक्स. तो कॉम्प्रेशन इंडेक्स तो आ गया हमारे पास. एच नॉट का मतलब होता है इनिशियल डेप्थ, और इनिशियल इसका जो डेप्थ है, तो इनिशियल डेप्थ तो पता है हमें 3 मीटर है, तो एच नॉट भी पता है हमें. 1 प्लस ई नॉट. ई नॉट मतलब, अगर नॉट का मतलब पता है ना इनिशियल होता है, तो ई नॉट का मतलब इनिशियल वॉइड रेशियो. तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता है ना कैसे निकालते हैं? E इक्वल टू WG/S, ये भी पता है ना. यस E इज इक्वल टू WG/S. ओके, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो होगा W का वैल्यू पता है हमें, वाटर कंटेंट 40% है. G का भी वैल्यू पता है 2.70 है. और S का वैल्यू कौन बताएगा मुझे? 1 होगा. 1 होगा. क्यों 1 होगा? क्योंकि ये वाटर टेबल, हाँ प्राइमरी कंसोलिडेशन. करेक्ट. हाँ एक तो वाटर टेबल यहाँ पे है ना, तो वाटर टेबल के जो नीचे है ना वो जनरली 100% सेचुरेशन में ही लेते हैं हम. तो S का वैल्यू 1 हो गया, और W का वैल्यू 40%, मतलब 0. अब इसको हम फाइंड भी कर लेते हैं. इज इक्वल टू वॉट? W का मतलब 40%, इट मीन्स 0.4 इंटू G का वैल्यू 2.70, है ना. और S का वैल्यू तो पता है 1 हमारे पास होता है. तो इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना वैल्यू आ रहा है. 1.08. 1.08. करेक्ट, 1.08. ठीक है, तो ये आपका आ गया E नॉट.
नेक्स्ट सिग्मा डैश नॉट, तो सिग्मा डैश नॉट का मतलब होता है इनिशियल स्ट्रेस। ये जब फाउंडेशन इस पे नहीं हुआ था तब स्ट्रेस क्या था इस पे, है ना। तो वो पता है ना कैसे निकालते हैं, सभी को पता है कैसे निकालते हैं इनिशियल स्ट्रेस। मैंने लास्ट, हाँ, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है निधि और स्वाति, मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था ना कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा इसको ना बाद में निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं ना डेल सिग्मा डैश निकालते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो फाउंडेशन है इसकी वजह से क्या स्ट्रेस में चेंज आएगा, तो इसकी वजह से चेंज आता है ये, एक सेकेंड, इसके डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ये कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा इसका। इसको नहीं लिखते हैं ना, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसके मिडिल पे, ये मिडिल पे। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है, ये हमारा फाउंडेशन, करेक्ट, ये हमारा फाउंडेशन। और इसका क्या है, ये जो विड्थ है कितना है बताओ, ये 2 मीटर है ना, क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर, है ना, 2 मीटर गिवन है सौरभ। ओके Yes, sir. ओके, हाँ, तो एक चैप्टर है हमारे पास सॉइल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं कि सॉइल का जो स्ट्रेस है ना वो कैसे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब भी ठीक है, और उसको बिल्कुल याद ही नहीं करना, हम फिर से बताते हैं वो क्या होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में दो 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 मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, एक मेथड आप जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लीजिएगा, और दूसरा मेथड अभी मैं बता रहा हूं जो बहुत सिंपलेस्ट है ना, ये जनरल ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री उसी को फॉलो करता है। क्या, ये बस अगर यहाँ पे स्ट्रेस है ये, तो ये ग्रेन टू ग्रेन, मतलब ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रायंगुलर, मतलब इस तरह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस तरह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, मतलब लोड तो सेम है, लोड अगर 1000, यहाँ पे कितना लोड देखो 1000 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाई एरिया होता है ना। तो यहाँ पर लोड क्या है 1000 किलो न्यूटन डिवाइड बाई एरिया, 2 मीटर का स्क्वायर है, या स्क्वायर फुटिंग है ना, तो 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे स्ट्रेस निकालेंगे तो लोड तो हमें पता है 1000 किलो न्यूटन, लोड तो हमें पता है ना 1000, लोड तो सेम होगा, स्ट्रेस चेंज होगा। लोड हमारे पास क्या है 1000 किलो न्यूटन। अभी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए सिंस इट इज अ स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर ही होगा, तो ये 2 मीटर है, करेक्ट। तो ये कितना मीटर होगा, कोई बता सकता है, मैं बताता हूँ इसको, सिंपल मीटर। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। हेलो, हाँ, अभी क्या है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन है यूज अप्रोक्सीमेट 2:1 लोड स्प्रेड, मतलब ये 2 वर्टिकल होगा तो 1 हॉरिजेंटल होगा, मतलब ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। तो अभी मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है, बताओ तो, कौन बताएगा, निधि और स्वाति, निधि और स्वाति में कोई एक बता मुझे, यहां से यहाँ 6 मीटर कैसे होगा, देखो ये पूरा का पूरा 2 मीटर है और ये 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, तो टोटल कितना, ये 2 और ये 1, और ये कितना हो गया, ये 1.5 है। ये जो हम जब भी, अच्छा हमेशा याद रखना, जब भी सेटलमेंट हम निकालेंगे तो सेंटर पे निकालेंगे। ठीक है, सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना मीटर हो गया 1.5, करेक्ट। तो 1.5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया बताओ, 2 और 1 3 और 1 4.5 हो गया ना, ये 4.5 न्यूटन, सॉरी 4.5 मीटर। क्लियर अंकित, यस सर। है ना। ठीक है, स्वाति आपने 6 मीटर बोला था ना, अभी क्लियर हुआ 4.5 मीटर कैसे लिखे। यस सर यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 4.5 मीटर। तो अगर ये 4.5 मीटर तो ये कितना हो जाएगा 4.5 बाई 2 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है ये 2:1 है ना, एज पर क्वेश्चन 2:1 3:1 1:1 भी दे सकता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 2:1 है या 1:1, इट्स अप टू यू, है ना। आप इसको 2:1 भी एज्यूम कर सकते हैं या 1:1 भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोर और लेस मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 2:1 ही दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4.2, करेक्ट। और ये आपका कितना मीटर हो गया, ये कितना है, ये 2 मीटर है, करेक्ट। और ये कितना है, ये भी सेम 4.5 बाई 2 होगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया बताओ मुझे, टोटल कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 4.5 बाई 2, तो ये हो गया ये 6.5 मीटर। ओके, सो वी कैन से दिस विड्थ ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन होगा हमारा ये 6.5 मीटर हो गया।
अब हमें क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब स्ट्रेस फाइंड करो। अब बताओ मुझे स्ट्रेस कितना हो जाएगा इसका, मतलब अभी अभी जो स्ट्रेस आएगा ना वो इसके वजह से आएगा, मतलब इस फाउंडेशन की वजह से। तो अभी स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताओ। लोड लोड तो सेम होगा 1000 किलो न्यूटन डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया क्या है, सिंस दिस इज स्क्वायर फुटिंग ना, तो ये भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या, 6.5 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या आ गया इसका, ये अगर करेंगे तो कितना आएगा, 23.6 23.6 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। 6 आएगा। हाँ 669 आएगा, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो दिस इज चेंज इन लोड, मतलब चेंज इन स्ट्रेस। इस फाउंडेशन की वजह से चेंज इन स्ट्रेस आया। स्वाति और निधि, इज इट क्लियर? Yes, sir. हरि शंकर, यस सर। ओके। ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना, मतलब कुछ इसमें ऐसा तो नहीं था कि बहुत टेक्निकल है या सिविल का स्ट्रेस, कोई कॉन्सेप्ट वैसा यूज नहीं हुआ, ये सिंपल ट्रिकोनमेट्री है ना। तो हमने अभी क्या कर लिया, डेल सिग्मा फाइंड कर लिया, ठीक है। तो डेल सिग्मा हमें फाइंड हो गया। अभी हमें फाइंड करना है सिग्मा नॉट डैश, मतलब इनिशियल स्ट्रेस क्या था फाउंडेशन होने की पहले, मतलब ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर। तो उसकी वजह से भी हम फाइंड कर पाते हैं ना, उसके लिए हम अभी हम क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं। मान लो ये हमारा क्या था, ये फिगर था ना, ये था ऐसे कुछ था, ये था हमारा क्या, सैंड था ना, ये भी सैंड था और ये क्ले था, ठीक है। वाटर टेबल यहाँ पे था, है ना। इस सैंड का क्या था, ये इसका यूनिट वेट 16 और 20, इसका 16 है, दिस इज 16, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और क्ले का क्या है 19, है ना। जस्ट रिमेंबर द यूनिट्स, इसका है 19, ओके 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। इसका भी यूनिट सेम होगा। तो अभी हमें कहाँ पे निकालना है, इस सेंटर पे, हमेशा हमेशा सेंटर पे निकालेंगे, है ना। ये क्या था 2 मीटर और ये 3 मीटर, ये 2 है, दिस इज 2, ये भी 2 है, और ये कितना हो जाएगा 1.5, है ना। क्लियर। तो अभी इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, आपका इनिशियल स्ट्रेस, है ना, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं। हाँ, टोटल स्ट्रेस पता है ना, टोटल स्ट्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, टोटल स्ट्रेस इज द समेशन ऑफ व्हाट, इफेक्टिव स्ट्रेस, हाँ, एंड पोर वाटर प्रेशर, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना, जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि बार बार इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं करना है कि टोटल भी निकालना है और यू निकालना है और उसको माइनस करना है। एक शॉर्टकट मेथड भी है इसको सिग्मा डैश निकालने का, वो शॉर्टकट मेथड अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अभी डायरेक्ट हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी बस फॉलो करना है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, ड्राई कंडीशन है या सैचुरेटेड या सबमर्ज है, ड्राई है ना, यस सर। करेक्ट, ड्राई है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गामा डी इसका लेंगे, गामा ड्राई, करेक्ट, गामा ड्राई 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 16 इंटू क्या होगा 2 होगा ना, यस सर। करेक्ट। अब नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट के, अब इसके लिए ये जो 20 है ना, ये गामा सैचुरेटेड था, क्वेश्चन में देखोगे ये गामा सैचुरेटेड लिखा होगा, देखो गामा ही लिखा ना, तो वो अंडरस्टूड है, वो सैचुरेटेड ही है, ठीक है। तो ये गामा सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन में देखो कहीं गामा डब्ल्यू का वैल्यू तो नहीं लिखा है ना, 10 लेना, अच्छा। अगर क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू का वैल्यू लिख देगा कि जस्ट एज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तभी 10 लेना है। और अगर नहीं लिखा होगा तब 9.81 लिखेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो हम 9.81 अभी एज्यूम करेंगे गामा डब्ल्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड 20 है, तो गामा सबमर्ज कितना होगा बता सकते हो कोई, किसी को याद है गामा सबमर्ज कैसे निकालते हैं गामा सेट से? माइनस करना करेक्ट, हम हाँ हमेशा याद रखना, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। दिख रहा है ना सबको, या छोटा यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो इसके लिए गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा 20 माइनस 9.81 होगा ना, ठीक है, 20 माइनस 9.81, तो इसका 20 माइनस 9.81, करेक्ट। अब इंटू कितना हो जाएगा 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, इंटू 2 मीटर, करेक्ट। प्लस यहाँ पे भी गामा ये सैचुरेटेड ही होगा, दिया हुआ नहीं है तो उसको गामा सैचुरेटेड ही है 19। तो फिर से लेंगे 19 माइनस 9.1, ये क्या हो गया, ये सबमर्ज यूनिट वेट इनटू इसका कितना होगा डेप्थ 1.5 मीटर है इसके ऊपर। अभी इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना बताओ, 66.165। करेक्ट, दिस इज द किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
बस इज इट, ये कैसे निकाले ये भी सभी को पता है ना, स्वाति, निधि, हरिशंकर? Yes, sir. ओके तो ये भी बड़ा सिंपल है ना, दिस इज वेरी सिंपल. सो दिस इज इनिशियल स्ट्रेस, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर. ठीक है 66. अभी बताओ, अभी वापस इस इक्वेशन में आओ, तो ये भी हमें पता चल गया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया. ठीक है ये तो पता ही है, अभी ये सेम है. एच नॉट भी पता है, ए नॉट भी पता है, सीसी भी पता है. बस सबका वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दिस डेल्टा एच, दैट इज कंसोलिडेशन सेटलमेंट, है ना. सीसी का वैल्यू बताओ क्या है, डेल्टा एच. डेल्टा एच इज इक्वल टू सीसी. सीसी का वैल्यू कितना निकाले थे अभी हमने, देखो 0.45. डेल्टा इज इक्वल टू 0.45 इंटू एच नॉट. एच नॉट मतलब क्या, 3 मीटर, है ना. एच नॉट 3 मीटर है ना. देखो ये क्ले का टोटल हाइट क्या है, 3 मीटर, डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट. 1 प्लस ई नॉट, अभी ई नॉट मतलब इनिशियल हम निकाले थे अभी 1.08. 1.08 इंटू लॉग सिग्मा नॉट मतलब इनिशियल स्ट्रेस, ये 66.165. 66.165 प्लस जो चेंज इन स्ट्रेस. चेंज इन स्ट्रेस इस फाउंडेशन की वजह से आया था, क्या आया था, 23.669. 23.669 बाय इनिशियल स्ट्रेस 66.165. जस्ट कैलकुलेट इट, सॉल्व इट, यू विल गेट डेल्टा एच, दैट इज सेटलमेंट. क्या आ जाएगा बताओ मुझे, इतना आएगा देखो 8.62 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो दिस इज योर व्हाट, फाइनल consolidation settlement. Is it clear? Tamang, are you there? Yes, sir. हाँ yeah. सर इस थोड़ा सा इससे पीछे जाइए ना सर, जो डायग्राम बनाया है आपने. हाँ ये सर वहाँ पर सर 2 to 1 दिया है सर, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल है या 2 वर्टिकल, तो इसको कैसे समझे सर? नहीं, इसको बस समझ लेना है कि ये हमेशा वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल देगा. ठीक है, वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल होगा ये. ठीक है, वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, ये समझना है बस. हाँ वर्टिकल. ये क्वेश्चन इज राइट कि ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल भी हो सकता है ना, क्योंकि ये एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको लिखना था कि वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, लिखा नहीं इसमें, तो एज्यूम कर लेते हैं ये वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल ही होगा. ठीक है, मतलब वर्टिकल ज्यादा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम जाएगा, जनरली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, इसीलिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे, है ना. और बहुत सारे क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा लिखा होगा. और देखिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ईएस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये तो बताने में इतना समय लग गया ना, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो मुश्किल से ये क्वेश्चन 90 सेकंड, 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है ना. 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको, 1 मिनट में हो जाता शायद, मुझे लगता है ना. इसमें देखो ये तुम जो सीसी का वैल्यू है ये भी मुझे याद है, डायरेक्ट निकाल लोगे. ठीक है, एच नॉट, ई नॉट, डब्ल्यू जी डायरेक्ट निकाल लोगे. सिग्मा डैश नॉट ये भी तुरंत निकाल लोगे, है ना. बस डायग्राम बनाने में अगर शायद वक्त लगे, है ना, तो ये भी तुरंत निकल जाएगा. तो बस जो भी टाइम लगेगा इसी को फाइंड करने में, ये 6.5 मीटर, और बाकी ये दोनों तो फाइंड ऐसे भी है. और सिग्मा नॉट वो भी पता है हमें कि 16 इंटू 2 और 20 माइनस 9.81 इंटू 2 प्लस 19 माइनस 9.81. और तुम 10 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ 9.81 लेना है. इफ यू जस्ट राइट एज्यूम गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10, है ना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा जनरली अगर वैसा होगा तो. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तमंग, आर यू देयर? तमंग इज नॉट देयर. ओके, स्वाति. Yes, sir. ठीक है, अंकित, सौरभ, सम्राट. यस सर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में रहेगा, उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव वाइज ही रहेगा. अभी ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए एक बार. ओके अभी देखिए क्वेश्चन क्या है. अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल 30 mm थिक गॉट 50% कंसोलिडेटेड इन 20 मिनट्स विथ ड्रेनेज अलाउड एट टॉप एंड बॉटम. अच्छा ये आप दो एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ड्रेनेज अलाउड मतलब क्या होगा कि मान लो कोई सॉइल है ना, मान लो यहाँ पे कोई सॉइल है. ठीक है, यहाँ पे कोई सॉइल है. ठीक है, तो जब इसमें कंसोलिडेशन होगा तो इसमें जो वाटर है ना, वाटर तो बाहर आएगा ना. तो हो सकता है कि वाटर इस डायरेक्शन से भी बाहर आए और इस डायरेक्शन से भी बाहर आए. अगर दोनों डायरेक्शन से आएगा तो इसको हम बोलते हैं डबल ड्रेनेज. डबल ड्रेनेज. ठीक है, और मान लो किसी केस में सॉइल सिर्फ
सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, या तो नीचे से आ रहा है या तो ऊपर से आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज। अभी ये किस केस में होगा बताओ मुझे। मान लो कोई ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये कोई सॉइल है, ये यहां तक कोई सॉइल स्ट्रेटा है, ठीक है, ये सॉइल है, और मान लो इसके नीचे इम्परमिएबल स्ट्रेटा है। soil है। हाँ, इम्परवियस सॉइल है या इम्परमिएबल स्ट्रेटा है ना, इम्परवियस सॉइल है, ठीक है। क्ले, जनरली क्ले या क्ले नहीं, स्टोन है मान लो, ठीक है। तो मान लो अगर नीचे इम्परमिएबल है तो इसमें वाटर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जाएगा, यहां से बाहर आएगा ना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल ड्रेनेज। सिंगल ड्रेनेज, ठीक है। और मान लो कोई सॉइल है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये मान लो क्ले सॉइल है, और यहाँ पे कोई सैंडी सॉइल आ गया फिर से, है ना, तो हम बोल सकते हैं सॉइल इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डबल ड्रेनेज। करेक्ट। तो हमेशा याद रखना डबल ड्रेनेज, सिंगल ड्रेनेज। क्लियर हो गया ये सभी को? ओके। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल 30 mm थिक, है ना। जनरली जब ये 30 mm ऐसा कुछ आएगा ना तो समझना कि ये लेबोरेटरी टेस्ट होगा ये, है ना। तो ये 30 mm थिक गॉट 50% कंसोलिडेशन हो गया उसमें इन 20 मिनट्स विथ ड्रेनेज अलाउड एट टॉप एंड बॉटम इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। इफ द क्ले लेयर फ्रॉम विच द सैंपल वाज ऑब्टेन्ड इज 3 मीटर थिक, है ना, मतलब ये जो सॉइल हम जहां से लाए थे, जिस इन सीटू से लाए थे, उस क्ले लेयर का थिकनेस है 3 मीटर इन सीटू में, है ना। तो वहां पे 50% कंसोलिडेशन होने में कितना टाइम लगेगा। अभी ये देखो दो क्वेश्चन है इसमें, दो मतलब ये है क्या है, दो सिचुएशन है, एक है डबल ड्रेनेज और एक है सिंगल ड्रेनेज। तो फॉर्मूला सेम होगा, बस थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा अभी हम लोग देख लेंगे उसमें। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना, लिख लो आप लोग, टाइम फैक्टर टीवी, टाइम फैक्टर टीवी इक्वल टू सीवीटी बाई एच स्क्वायर, सीवीटी बाई एच स्क्वायर, इसको लिख लो। टाइम फैक्टर इज इक्वल टू सीवी टी बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टीवी का वैल्यू है ना, ये टाइम फैक्टर होता है, और ये टीवी का जो इक्वेशन होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, है ना। इसके लिए दो फॉर्मूला होता है। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इफ यू इज स्मॉलर देन 60%, तब एक टीवी का फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 यू स्क्वायर, और अगर u इज ग्रेटर देन 60% तो एक टीवी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, मुझे भी याद नहीं है ये, एक मिनट मैं देख ले रहा हूं इसको। यहाँ पे टीवी का फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा नहीं जनरली, 1.781 हाँ ऐसे कुछ कुछ थोड़ा लंबा है ना, तो मुझे भी ये जनरली, होता है 1.781 माइनस 0.933 log 100 माइनस u/। हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट वही होता है। तो अभी उसको जनरली हम उसको ये नहीं करना है, कहाँ पे गए हम वापस। ओके। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, UV इज ग्रेटर देन 60%, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो अभी अंकित ने बताया, और आप लोग बुक में उसको देख लीजिएगा फिर से। लेकिन मोर और लेस मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही इसी वाले डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से आएगा, है ना। तो लेकिन एग्जाम के जाने के पहले ये भी फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन इससे भी आ जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि जनरली इसी से आता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है पाई बाई 4 यू स्क्वायर, वेयर यू इज व्हाट, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ओके। तो यहाँ पर देखो सॉइल, एक ही सॉइल के बारे में बात हो रहा है ना, और कंसोलिडेशन दोनों में सेम है 50% 50%, ठीक है। तो टीवी का भी वैल्यू सेम होगा, तो इस कंडीशन में टीवी सेम होगा ना, क्योंकि दोनों के लिए एक लेबोरेटरी, एक लैब के लिए बात हो रही है, और एक इन सीटू की बात हो रही है, इन सीटू की बात हो रही है ना। और दोनों का सॉइल स्पेसिमेन एक ही है। यहाँ पे देखो लिखा है, इफ द क्ले लेयर फ्रॉम विच द सैंपल वाज ऑब्टेन्ड इज 3 मीटर थिक, है ना। तो सॉइल सेम है, तो सॉइल का प्रॉपर्टी भी सेम होगा, तो सीवी का भी वैल्यू सेम होगा, और टीवी तो सेम है ही, क्योंकि यहाँ भी 50% कंसोलिडेशन बोल रहा है, और ओरिजिनल में भी मतलब इन सीटू में भी 50% के बारे में पूछ रहा है, तो टीवी भी सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा आएगा, इफ टीवी और सीवी अगर कांस्टेंट होगा तो क्या लिख सकते हैं, अगर टीवी और सीवी कांस्टेंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई एच स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा ना, लिख सकते हैं स्वाति एंड निधि, सिंपल है। Yes, sir. ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, T1 बाई H1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई H2 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 1 फॉर लैब और 2 फॉर इंस्टीट्यूट में लिखा। तो लेबोरेटरी के लिए T1 का वैल्यू देखो क्या है, 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है। और H1 जो होगा ना, H1 इज द ड्रेनेज पाथ, इसको बोलते हैं। ये थिकनेस ऑफ द सॉइल नहीं है,
ये ड्रेनेज पाथ है। अभी ड्रेनेज पाथ और थिकनेस ऑफ सॉइल में क्या अंतर है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा एक सॉइल है, ठीक है, ये है एच, ठीक है। तो अगर सिंगल ड्रेनेज होगा, अगर हम बात करेंगे सिंगल ड्रेनेज की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल ड्रेनेज, है ना, तब जो एच का वैल्यू होगा वो एच ही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे डबल ड्रेनेज की, डबल ड्रेनेज की, मान लो ये एच नहीं, इसको जेड हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये दिस इज जेड, ये जेड है, ठीक है। तो ये एच जो होगा वो क्या होगा, जेड ही होगा, है ना। एच मतलब ये वाला एच है ना, ड्रेनेज पाथ, तो एच इक्वल टू जेड। लेकिन जब ये डबल ड्रेनेज हो जाएगा तब हम एच को क्या लिखेंगे पता है, जेड बाई टू। गॉट इट। जब हम सिंगल ड्रेनेज की बात होंगे तो हम बोलेंगे ये टोटल जेड इक्वल टू एच। लेकिन जब डबल ड्रेनेज की बात करेंगे तब इसको जेड को हम हाफ कर देंगे, जेड बाई टू, ठीक है। और ये एच क्या है, ड्रेनेज पाथ। क्लियर टू एवरीवन। तो अभी मुझे बताओ यहां पे लैबोरेटरी के लिए एच का वैल्यू कितना होगा, स्वाति तुम बताना। So same 30 mm. एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से, देखो क्या लिखा है। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल 30 mm थिक गॉट 50% कंसोलिडेशन इन 20 मिनट्स विथ ड्रेनेज अलाउड एट टॉप एंड हाफ बॉटम। हो जाएगा, हाफ हो हाँ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखा है ना टॉप एंड बॉटम, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है ना। तो 30 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15 mm। क्लियर। Yes, इज sir. इक्वल टू T2 तो हमें नहीं पता, T2 हमें निकालना है। और H2 क्या है, H2 अब बताओ क्या है। यहाँ पे 3 मीटर है। अभी यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे देखो दो कंडीशन है ना, एक डबल ड्रेनेज के लिए और सिंगल ड्रेनेज के लिए। तो अगर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डबल ड्रेनेज मतलब ये 3 मीटर क्या हो जाएगा, बताओ 1.5 मीटर हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर, यहाँ mm लिया है ना तो यहाँ भी mm लिखना पड़ेगा। अभी ठीक हो गया ये। तो अब इसका T2 निकालो, अब T2 फाइंड करो, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो अभी ये देखो ये मिनट्स में है ना, तो आंसर भी तुम्हारा मिनट्स में ही आएगा। ये आ जाएगा देखो 2 × 10⁵ मिनट्स के आसपास कुछ आएगा, 10⁵ मिनट्स आएगा, है ना। इसको डेज में कन्वर्ट करना, आवर्स में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा नहीं कि इसको आपको डे में देना, आवर्स में देना, ठीक है। लेकिन जनरली 2 × 10⁵ मिनट्स है, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको डेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आ जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या है, सिंगल सरफेस ड्रेनेज, है ना। तो इसमें चेंज क्या होगा बताओ, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में चेंज कहां पे होगा, बताओ मुझे अंकित। H2. H2 में, मतलब ये तो सेम होगा 20/15, ये तो सेम ही है ना 20/15, क्योंकि लेबोरेटरी में हो रहा है तो 20/15 सेम है। अभी T2 बाई क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये सिंगल ड्रेनेज होगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर, है ना। मीटर यहाँ mm में लिखना है तो यहाँ से T2 आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली अभी क्या करना है यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, ये H1 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, Yes, sir. Square बोला. ये स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर है, करेक्ट, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो T2 क्या आ जाएगा इसका, हमारा जो कैलकुलेशन आएगा बताओ कितना आएगा, 8 × 10⁻, ऐसा कुछ आएगा 20 बाई, देखा जितना भी आएगा एक बार देख लेना आप कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करना, मुझे बताना अगर कैलकुलेटर किसी के पास तो। हाँ करेक्ट, 8 × 10⁵ 8 × 5 आएगा, है ना। देखो मैं भी इसमें मिनट्स है ना, मिनट्स। अभी इसमें अभी ये तो अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. अभी सिंस ये क्वेश्चन ईएस में पूछा गया है ना, तो सब्जेक्टिव पूछा गया तब हम इतना करेंगे। अगर यही क्वेश्चन गेट में पूछा होता है ना, तो गेट के लिए तो इतना तो करना पड़ता है ना, क्योंकि इतना तो फाइंड करना पड़ता। इसके बाद अगर सिंगल सरफेस करता ना तब हम पता क्या करते, ये इक्वेशन को देखो तुम, ये इक्वेशन को देखो, ठीक है। अभी इसमें जब सिंगल ड्रेनेज की बात हो रही है, जब डबल ड्रेनेज की बात हो रही है तो ये हाफ हो जा रहा है ना, मतलब H2 हाफ हो रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। इसका मतलब कि जब भी तुम्हें शॉर्टकट में अगर डबल ड्रेनेज बता दिया तो सिंगल ड्रेनेज में क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अभी ये 4 टाइम्स 1/4 होगा या 4 होगा, इसके लिए भी एक ट्रिक है क्या, कि डबल ड्रेनेज है तो जल्दी से पानी जाएगा ना, सिंगल ड्रेनेज में तो टाइम लगेगा। तो इसका जो मान लो इसका जो टाइम T1 आ गया, मान लो इसका टाइम T1 आ गया, तो इसका जो टाइम है ना डबल ड्रेनेज, इसका T2 क्या होगा पता है,
बिना कैलकुलेशन किए हुए तुम क्या कर सकते हो, अगर डबल ड्रेनेज में पता है कि T1 है तो सिंगल ड्रेनेज में बस क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से देखो H2/2 आएगा, तो बाई 2 जब बाहर आ जाएगा ना तो 2 × 2 4, बाकी का इक्वेशन तो सेम है, तो 4 × दिस टर्म। तो ये समझ में आ गया अंकित क्या मैंने बोला? यस सर। सौरभ, यस सर। है ना? तो जब भी गेट में क्वेश्चन आएगा, जनरली जब एमसीक्यू में आएगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है कि सिंगल में भी एसएससी में क्वेश्चन निकलना है। डबल ड्रेनेज का आगे हमें पता है तो सिंगल ड्रेनेज का 4 टाइम्स होगा। सिंगल का पता है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो डबल का आ जाएगा हमारे पास। सिंपल, क्लियर एवरीवन? हरिशंकर, यस सर। ओके नाउ अच्छा देखो टाइम फैक्टर, ये फॉर्मूला टीवी इक्वल टू CVT/H², ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉपी में। टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू CVT/H², और टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है इसमें। देखिए कुछ डेटा है हमारे पास। इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट वॉइड रेशियो इज गिवन, है ना? वॉइड रेशियो 2 बार दे दिया ना, मतलब अगर प्रेशर हम इतना एग्जर्ट कर रहे हैं 214, तो वॉइड रेशियो 1.068 है, और प्रेशर अगर 429 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो आपने कॉपी में लिखा ना कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, बताओ मुझे क्या लिखा कॉपी में? सर डेल्टा ई बाय डेल्टा करेक्ट, सिग्मा। ये लिखा ना, देखो ये अभी हमने पढ़ा था ना अभी कुछ देर पहले ये ग्राफ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा डैश। तो डेल्टा ई क्या करेंगे 1.068 माइनस 0.994 करेंगे डिवाइड बाई दिस 214/429, है ना? और ये आगे माइनस में रहता है जनरली, ये ठीक है, ये माइनस में होगा, है ना? तभी तो ये माइनस और माइनस, सिंस देखो जब डेल्टा, जब इफेक्टिव स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे तो वॉइड रेशियो क्या होगा? कम होगा, है ना? तो रेशियो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो इसीलिए एक नेगेटिव पहले से रहता है ताकि नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकाल लोगे सभी कोई। 1.068 माइनस दिस 0.994 डिवाइड बाई 214/429, तो जो वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्रेशन इंडेक्स, वो भी हमने पढ़ा क्या? डेल्टा ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डैश बाई लॉग सिग्मा 1। इसका भी हाँ, इसका भी सेम करना है। 1.068 माइनस 0.994 डिवाइड बाई लॉग 214/429, यहाँ से आपका कॉम्प्रेशन इंडेक्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, डेल वी बाई डेल वी बाई वी नॉट डिवाइड बाई डेल सिग्मा नॉट। तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिए। MV कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेशियो ऑफ व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेस। ठीक है, और ये देखो डेल वी बाई वी नॉट को ना डेल एच बाई एच नॉट भी लिखते हैं। ठीक है, डेल एच बाई एच नॉट लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम MV इज इक्वल टू डेल एच बाई एच नॉट डिवाइडेड बाई डेल सिग्मा डैश लिखेंगे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? MV इंटू एच नॉट इंटू डेल सिग्मा डैश लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से यहां तक लिख सकते हैं ना? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको ना आप लिख लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए कि हम अगर डायरेक्ट जैसे यहाँ पे सेटलमेंट निकालना है, सेटलमेंट निकालना है, तो अगर हमें MV पता है, एच नॉट पता है और चेंज इन स्ट्रेस पता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेटलमेंट आ जाएगा। तो MV इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में MV तो पता चल गया हमारे पास। MV का वैल्यू क्या है? AV बाई 1 प्लस ई नॉट। AV हमने अभी कुछ देर पहले फाइंड किया, और ई नॉट मतलब क्या है? इनिशियल 1.068, है ना? तो AV पता है, ई नॉट 1.068, तो यहाँ से MV पता चल गया। ठीक है, और एच नॉट देखो लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे 8 मीटर, है ना, 8 मीटर, तो यहाँ पे एच नॉट भी पता चल गया। अभी डेल्टा सिग्मा क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन एबव टाइप ऑफ क्ले इफ थिकनेस ऑफ लेयर इज 8 मीटर एंड द इंक्रीज इन प्रेशर इज 10 किलोन्यूटन। तो इंक्रीज इन प्रेशर भी 10 है, तो MV पता चल गया, एच नॉट गिवन है और डेल्टा सिग्मा गिवन है, तो ये तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एच भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व आप कर लेंगे या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा?
कर लेंगे तो। कर लेंगे ना? हाँ, इसको मुझे लगता है कर ही लीजिएगा क्योंकि काफी इजी है। अगर नहीं कर पाएंगे ना तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा। लेकिन जो मोर और लेस है, सिंपल इक्वेशन है। एवी का वैल्यू इस यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा ई और डेल्टा सिग्मा 1 पता है हमें, सीसी भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद डेल्टा एच भी आ जाएगा, ठीक है। एम भी पता है, एच नॉट 8 मीटर। कितना आंसर होगा? इसका 13.3। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। इसका एवी का वैल्यू आ जाएगा आपको, एवी का वैल्यू आ जाएगा 3.44 सेटलमेंट इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ठीक है। यह आ जाएगा एवी का वैल्यू। सेटलमेंट का वैल्यू आ जाएगा कितना? 13.28 13.3 mm, हाँ करेक्ट, 13.3 mm यह आ जाएगा सेटलमेंट, है ना। और सीसी का वैल्यू आ जाएगा इसका कोफिशिएंट कंप्रेशन इंडेक्स का 0.245, ठीक है। और एमवी का वैल्यू आ जाएगा आपको 1.66 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। इजी है ना, बिल्कुल। ये इसमें कुछ है ही नहीं, ये फॉर्मूला याद है, आप वैल्यू सारा वैल्यू दिया है, आप बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं अभी तक वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चन ऑफ ईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी। और तीनों का देखिए बहुत ज़्यादा, अगर आपको कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट याद है, सिंपल फॉर्मूला है ना, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। देखो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो काफी इजी था ये। निधि, और कौन है क्लास में सेकंड ईयर से, और कौन आया है बताना मुझे। हेलो, सर निधि और मैं बस। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके। हरिशंकर, आप हैं क्लास में? यस सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। अंडर अ सर्टेन लोडिंग अ लेयर ऑफ, आप पढ़ लीजिए पहले इसको। यहाँ पे देखो क्या है, अंडर सर्टेन लोडिंग लेयर ऑफ क्ले इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो फुल सेटलमेंट 18, मतलब फुल सेटलमेंट क्या है, अल्टीमेट सेटलमेंट इसका फाइनल है 18, ठीक है। इट इज 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट होने में इसको 2 मंथ लगते हैं, तो 10 सेंटीमीटर सेटलमेंट होने में कितने समय लगेंगे, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो टोटल सेटलमेंट आपका 18 होना है, ठीक है। और अच्छा, एक मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो सेटलमेंट है ना, टोटल सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, एक हमारे पास टेस्ट होता है, इन सिटू टेस्ट। आपको लैब में तो कंसोलिडोमीटर जो स्पेसिमेन है IS 2720 पार्ट 15 को फॉलो करके तो हम कंसोलिडेशन निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास जो इन सिटू टेस्ट है ना, जो फील्ड में टेस्ट होता है, वो टेस्ट का नाम लिख लीजिए आप, प्लेट लोड टेस्ट। अंकित, प्लेट लोड टेस्ट, आई होप आपने सॉइल एक्सप्लोरेशन चैप्टर में पढ़ा था अंकित, यस सर। है ना। प्लेट लोड टेस्ट, वहां से भी हम सेटलमेंट वर्सेस दिस लोड का ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। वहां से भी अल्टीमेट सेटलमेंट निकालते हैं और उसी पे हम फिर डिजाइन भी करते हैं फाउंडेशन का, खैर वो बाद में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में इट इज सेइंग दैट द फुल सेटलमेंट इज 80 सेंटीमीटर, ओके, इज एक्सपेक्टेड। नाउ 5 सेंटीमीटर सेटलमेंट होने में 2 मंथ लगा, तो 10 सेंटीमीटर होने में कितना मंथ लगेगा बताओ। 5 सेंटीमीटर होने में 2 मंथ लगा, तो 10 सेंटीमीटर होने में 4 मंथ लगेगा। क्लियर, यही है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये एप्टीट्यूड का सवाल नहीं है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वी नो द टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू CV T बाई एच स्क्वायर। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या है, CV क्या है, CV इज व्हाट, सॉइल प्रॉपर्टी, तो ये तो कांस्टेंट होगा। और एच स्क्वायर, ये एक ही सॉइल के बारे में बात हो रहा है ना, एक ही इन सिटू सॉइल के बारे में बात हो रहा है, तो टोटल जो इसका थिकनेस ऑफ सॉइल है वो भी तो सेम था पहले, है ना। तो CV और H सेम है, ये समझ में आ गया ना। मैंने CV और H को सेम क्यों लिया, सभी को समझ में आया। Yes, sir. CV क्योंकि एक ही सॉइल की बात हो रही है, तो सॉइल प्रॉपर्टी है, CV सेम हो गया। और H क्या हो रहा है कि उसी जगह की बात हो रही है ना, एक ही जगह की बात हो रही है, तो H भी इनिशियल थिकनेस उसका सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, TV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं, है ना। और TV क्या है, TV इक्वल टू व्हाट, TV इज इक्वल टू π/4 U स्क्वायर है ना। तो TV को क्या लिख सकते हैं, TV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, TV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, सभी को क्लियर अभी, हाँ ठीक है। तो U अभी क्या लिख सकते हैं हम, U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 बाई T2, करेक्ट। अभी U1 क्या है, U1 हमने ले लिया
5 सेंटीमीटर। तो यू क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर जितना अभी कंसोलिडेशन हुआ बाय टोटल सेटलमेंट, तो 5/18, 5/18 करेक्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब सेकंड कंडीशन में क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो 10/18 का होल स्क्वायर करेक्ट, डिवाइड बाय T1 5 सेंटीमीटर कंसोलिडेशन होने में क्या समय लगा था, 2 मंथ्स, और 10 सेंटीमीटर का हमें निकालना है T2। इसको सॉल्व कीजिए, आपको T2 का वैल्यू आ जाएगा 18 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 5/10 तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 मंथ। इसके लिए ऐसा नहीं बार बार कैलकुलेटर निकालना है, ये सब सॉल्यूशन के लिए ना कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ये सब एकदम डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट है पूछना है? ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना टाइम के साथ? हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द टाइम? अंकित, सौरभ? नो सर। ओके ठीक है, सौरभ चला गया सर। आज सौरभ चला गया। अगर किसी को टाइम का इशू है ना तो आप लेफ्ट कर दीजिएगा, लास्ट पर्सन जो लेफ्ट करेगा ना वो मुझे बता के लेफ्ट करेगा, ठीक है। हम इसका जो रिकॉर्डिंग होगा आई विल अपलोड इन द यूट्यूब, ओके, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। लेकिन अगर अभी देखिएगा तो अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, हाउएवर, ठीक है। जस्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज would you required by a clay stratum 5 meter thick draining at both the end with coefficient of consolidation पता है और 50% कंसोलिडेशन पता है ना, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये भी एकदम बिल्कुल सीधा सवाल है, बताओ क्या होगा इसका। देखो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है बताओ, टीवी इज इक्वल टू CVT/H², है ना। टीवी का वैल्यू गिवन है 0.197, अगर टीवी T50 0.197 गिवन भी नहीं रहता ना तो हम निकाल सकते थे इसको, सिंस 50% कंसोलिडेशन की बात कर रहा है ये, तो हमें पता है कि π/4 U² होता है ना। ये टीवी अभी देखो U की जगह 0.5 रख कर देखो 0.197 आ जाएगा। CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ये भी दे दिया है 15 इंटू 10⁻⁻4, है ना। और टाइम हमें निकालना है ना, टाइम हमें निकालना है। अभी H, तो H क्या है 5 मीटर, तो हमेशा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सेंटीमीटर पे है ना, तो इसको भी हम 5 मीटर को क्या करते हैं सेंटीमीटर में कर लेते हैं बस, है ना, ठीक है। और ये इसका जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.197, तो ये हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ TS। सर हाँ 5/2। सर बोलो 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 बोलो। सर 5/2 होगा ना सर? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके। ये देखो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रेनेज एट बोथ द एंड, करेक्ट, बोथ द एंड, है ना, बोथ द एंड, तो 5/2 होगा। वेरी गुड स्वाति, सिंस इट इज ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन में अच्छे से रीड करना है। ड्रेनिंग एट बोथ द एंड्स, तो ये डबल ड्रेनेज होगा तो ये 2.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा टी का वैल्यू इतना, ठीक है, ये आ गया सेकंड में, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देखो कुछ लिखा है कि डेज में लिखा है ना, हाउ मेनी डेज, तो आपको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो सिंपल है, डेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इट विल कम 28.5 डेज, ओके, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट होगा तुरंत रोक दीजिएगा मुझे, है ना, क्योंकि रात काफी हो गया ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 20 मिलीमीटर थिक लेबोरेटरी सॉइल सैंपल रीच्ड 60% कंसोलिडेशन इन इतना सेकंड, डबल ड्रेनेज हो रहा है, हाउ मच टाइम इट विल बी। आप पढ़ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ पे भी सेम पूछ रहा है ना, 20 मिलीमीटर थिक है, 60% कंसोलिडेशन होने में 32.5 सेंटीमीटर लग रहा है, सेकंड लग रहा है। वही सॉइल सैंपल, मतलब वही सॉइल सैंपल जब इन सिटू से हम जहाँ से लाए हैं वहाँ 10 मीटर थिकनेस होने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल इजी है, वही फॉर्मूला अगेन, TV इज इक्वल टू CVT/H²। अभी यहाँ पर देखो जो TV है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, दोनों को एक दोनों कंडीशन में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है। देखो यहाँ 60% है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट बी रिक्वायर्ड इन द फील्ड टू रीच द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो TV सेम हो गया, CV तो सेम ही होगा क्योंकि सेम सॉइल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, T1/H1² इज इक्वल टू T2/H2², करेक्ट।
T1 के लिए कितना लगा 32.5 सेकंड लगा। H1 क्या है 20 मीटर थिक। अभी हमको देखना है ये डिग्री ये क्या डबल ड्रेनेज है ना, तो 20/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 हमें फाइंड करना है, H2 हमें 10 मीटर दिया हुआ है। 10 मीटर तो इसको सबसे पहले तो हम मिलीमीटर में कर लेते हैं 10⁻³ से। अभी देखना है कि इस यहाँ पे ये ड्रेनेज क्या है। इफ द क्ले लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन अ सैंडी लेयर एंड एन इम्परमिएबल लेयर, तो इसका मतलब बताओ स्वाति क्या है। सर सेम होगा थिकनेस। हाँ करेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये ड्रेनेज सिंगल और डबल। सिंगल Single. हाँ, तो बस ये यहाँ पे यही होगा। तो यहाँ से आपका T2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 32.5 इंटू 10⁶ सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना, ज़्यादा जल्दी होने जाने से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मोरलेस मैंने जो अभी बताया 5 क्वेश्चन जो सॉल्व किया और जो थ्योरी बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन उतना पे ही सॉल्व हो जाएगा। एक मैंने बताया ना वो प्री कॉन्सोलिडेटेड सॉइल के लिए जो सेटलमेंट का फॉर्मूला है, एक वो लंबा वाला फॉर्मूला उसका एक रह गया, और मोरलेस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं हम कि 65% 70% सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, उसी पे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कंटिन्यूएशन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लीजिए, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया जस्ट रिवाइज इट, है ना। तो और किसी को कुछ पूछना है अभी? अंकित, सम्राट, निधि, स्वाति? सर हाँ सर सर ये इतने छोटे छोटे आंसर का 10 मार्क्स क्यों देते हैं सर IAS में? आपको ऑफर करते हैं हमारे यूपीएससी वाले कि आप जल्दी आइए हमारे पास और आप असिस्टेंट इंजीनियर बनिए सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर स्टडिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो कभी भी आप कॉलेज प्लेसमेंट का तो सोचिए ही नहीं। कॉलेज प्लेसमेंट जितना भी कॉलेज का प्लेसमेंट आ रहा है, 10,000 का नौकरी हो या 10 करोड़ का नौकरी हो, सारे इंटरव्यू में आपको बैठना है, सारे एप्टीट्यूड क्लियर करना है, सारा का रिटन क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है। आपको नौकरी नहीं लेना है, नौकरी क्या करना है आपको, नौकरी इंटर प्लेसमेंट तो क्रैक करना है, हाथ में नौकरी ले लेना है, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है, ईएस करना है या फिर हायर स्टडीज करना है। अगर हायर स्टडी करना है तो गेट क्रैक करके एमटेक कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसी में गेट, और गेट पे भी अच्छा नंबर लाके काफ़ी जॉब मिलते हैं, और ईएस क्रैक करके एसएससी जेई एई आपके स्टेट पीएससी बहुत सारे जॉब है। इसीलिए सिविल में जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर आर अबंडेंस ऑफ जॉब, है ना। देखिए ईएस का ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कितना कम मार्क्स का एग्जाम होता है, और 10 मार्क्स अगर आप ऐसा ऐसा 2-3 क्वेश्चन आ जाए, तो ये देखिए ये 3 लाइन में आंसर आ गया ना। ये जो मैंने लिखा, ये जो लाइन लिखा और ये लाइन लिखा, ये लाइन तो मैंने समझाने के लिए लिखा, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में क्वेश्चन, और आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो गया, है ना। अभी हम लोग आगे गेट का भी सवाल देखेंगे, है ना। जैसे अभी ये देखिए सेंटेंस, इसका इजी है, एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन, ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है, ठीक है। हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेस क्लास यू मे आस्क। इज इट क्लियर टू यू? ओके अंकित। सर हाँ, सर ये और सारे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही सर करा दीजिएगा क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट का मैं पढ़ा दूंगा, पर अभी जो हम सारे सब्जेक्ट का पढ़ा देंगे आपको A to Z, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर, ऑल द सब्जेक्ट यू विल बी डिस्कस, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, जो हम टास्क दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं जैसे अभी पढ़ा दिया मैंने, तो कम से कम इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अभी तो रात हो गया तो अभी सो जाइए, कल जब आप दिन में जब सुबह उठेंगे, जब आप कल फ्री होंगे तो कल ही इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? स्वाति और निधि, यस सर। आपको कोई इशू Yes, हुआ? sir. हाँ, आपने सॉइल अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने में कोई इशू हुआ? नो सर। ओके यस सर। ओके, सो आई एम कंक्लूडिंग नाउ। ओके सर।